Hello, friends. My name is Abhay Kumar, and today we are going to discuss 600 days of injustice. We all know that our friends from JNU, Sharjil Imam, was arrested on January 28, 2020, in false UAPA charges, and he is still there in the jail, and relatives and friends of Sharjil Imam are trying to get bail, but since he is arrested in UAPA, draconian UAPA law, getting uh, bail is made very difficult. And also, one unfortunate part of UAPA is that once you are arrested, before you get convicted, the state will assume you terrorist. And UAPA was not made by this law was not made by this government, but definitely the current regime has amended it. The current regime has made this law much more tougher, and since 2015 there has been rise of 72% in the cases of UAPA lost, and we know it very well that the most marginalized communities are victim of UAPA. It has been used against political opponents as well. So we will be talking about Sharjil Imam. We will be also talking about Umar Khalid, Miran Hadan, and all the political prisoners whose name I am not able to recall here and tell here. So our friend Asif Mustaba, who is IIT scholar, he is a scholar at IIT Delhi, and who has been very active during NTCA movement. I think he is keeping an eye on all the developments. So first, I will ask Asif to apprise us of the latest development, and we are all hoping that our dear Sergil should get out of the jail, Umar Khalid should get bail, and all those who are languishing in jail, they should be out of the jail, and they should fight for the rights of the people. So, Asif bhai, now जी जी you should speak, and we will ask all the speaker to keep their talk within 10 to 12 minutes, and then friends, if you are watching it, if you have any questions, please send it through the comment. So now it's over to Asif. जी जी Assalamu alaikum everyone. Shukriya Abhay ji for the brief introduction. Thank you so much, Professor Soumya Brata. I remember when the first time I was speaking at JNU related to, solidarity with Sharjil, me and Professor Soumya Brata spoke there. Thank you, Hiba, for joining in. Uh, आज 604 दिन है. Today is the 604th day when Sharjil is inside. 604 दिन. इन 604 दिनों में एक बेटा अपनी माँ से दूर है, एक दोस्त अपने दोस्त से दूर है, एक भाई अपने भाई से दूर है. तो इन 604 दिनों में ऐसे सैकड़ों ओकेजन आए होंगे मेरे सामने और आए हैं जब मैं खुद से ये सवाल करने पे मजबूर था कि शर्जील आखिर अंदर क्यों है. क्योंकि भले ही हम लार्जर सोलिडारिटी की बात करें, भले ही हम स्टेट ऑपरेशन की बात करें, भले ही हम एंटी सीए मूवमेंट की बात करें, पूरी जर्नी की बात करें, एक सबसे अहम सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, वो ये कि शर्जील अरेस्टेड क्यों है. जब 28 जनवरी 2020 को शर्जील ने सरेंडर किया था जहानाबाद में, उसकी एक क्लिप आई थी छोटी सी जिसको काट के बीजेपी आईटी सेल ने बहुत प्रोपेगेट किया. तो कई लोग ये सोचते थे कि शर्जील अरेस्टेड है क्योंकि अरेस्ट हुआ क्योंकि उसने चक्का जाम की बात की, एक पीसफुल वे की बात की जिसके थ्रू रोड को ब्लॉकेट किया जा सकता है. चक्का जाम नया नहीं है. पिछले 70 साल के डेमोक्रेटिक सेटअप में पिछले 100 सालों में कई मौके ऐसे आए हैं जब इस मुल्क ने और भी जबरदस्त स्केल पे चक्का जाम देखा है. जब रॉलेट एक्ट आया था 1918 में, तो गांधी और सैफुद्दीन किचलू ने एक चक्का जाम की बात की. पंजाब में बहुत ही लार्ज स्केल वायलेंस हुआ, सारे रोड नेटवर्क, रेलवे सब उन्होंने कट कर दिया. मैसिव था वो चक्का जाम. या 1974 के फर्नांडिस का आप देखिए, जब ट्रेड यूनियंस ने एक चक्का जाम का कॉल दिया
and there were massive chakka jam and abruption of the traffic across the country. सारे चक्का जाम में दो चीजें एकदम कॉमन है। हर चक्का जाम में एक सरकार होती है जो जालिम है, एक सरकार होती है जो बहरी है, एक सरकार होती है जिसको लगता है कि जुल्म के बिना पे, जुल्म की बुनियाद पे, अपने नंबर्स की बुनियाद पे, अपने पावर्स की बुनियाद पे, अपनी रिसोर्सेज की बुनियाद पे वो एक कम्युनिटी को चाहे जिस लेवल तक डिमीन करे, जिस लेवल तक जुल्म करे, उसका सोचने वाला कोई नहीं है। 1918 में यही अंग्रेज कर रहे थे। उनको लगा कि हम कोई भी एक्ट कुछ भी लाएंगे और हिंदुस्तानियों में जो भी लाइक दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू एटलीस्ट कम एंड से दैट लुक वी आर अगास्टेड बाय व्हाट यू आर सेइंग, look we are aghast by all these laws, all the black laws, all the dark laws that you are bringing in. यही हाल इंदिरा गांधी के दौर का भी था, जब उनको लगता था कि हम एक पावर के साथ हैं, does not matter with what iron fist I'm going to rule, with what trouble I'm going to give, people won't speak up for that. हर चक्का जाम में एक सरकार है जो जालिम है, एक सरकार है जो बहरी है, एक सरकार है जिसको लगता है कि वो रिसोर्सेज के बिना पे जुल्म की इंतहा, whatever level of atrocity they can commit, they would do. हर चक्का जाम में एक दूसरा एलिमेंट भी है। हर एक चक्का जाम में एक इंसान है जो खड़ा होता है, जो सारे जुल्म के बीच में खड़ा है। वो कहता है कि नहीं, ये दिस एक्ट इज रॉन्ग, your theory is wrong, your philosophy is wrong, and I would be using all the means possible within me to stop it. गांधी वही कर रहे थे 1918 में, जॉर्ज फर्नांडिस ने वही किया, शर्जील वही कर रहा था। तो चक्का जाम एक रीजन नहीं हो सकता जिसकी वजह से शर्जील हैज बीन इनकार्सोनेटेड फॉर मोर देन 600 days फॉर नाउ। कोई वजह नहीं। फिर क्या वजह है? फिर जब दिल्ली के दंगे हुए तब एक दूसरा नैरेटिव निकल के आया कि शर्जील ने अरेस्टेड है क्योंकि दिल्ली दंगों में उसका हाथ है। हाउ फार्सिकल इट इज, कितना मजाक है ये। शर्जील ने सरेंडर किया जनवरी 28 को, फरवरी 23 से दंगे हुए, और शर्जील, हाउ कैन ही बी मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस होल वायलेंस? दिस इज फार्सिकल, दिस इज एब्सर्ड। सो एक लाई के बेसिस पे, एक एब्सर्डिटी के बेसिस पे एक लीडर को, एक एक्टिविस्ट को आप 600 दिन से ज्यादा जेल में भर रहे हैं। So the draconianship lies with the mindset of the state, not with the individual who has been charged with it. शर्जील अरेस्टेड क्यों है? शर्जील जेल में क्यों है? शर्जील जेल में इसलिए है कि he talks about asserting an identity. शर्जील जेल में इसलिए है कि वो स्टेट के बाइनरी में फिट नहीं हो सकता। शर्जील जेल में इसलिए है कि he is not happy with all the draconian black law that the state is bringing with full impunity, कि हमको कोई there is no one who can come and challenge our authority. आज शर्जील की बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी एक्टिविस्ट को देखिए। 300 से ज्यादा दिन उमर खालिद को हो गए, 500 से ज्यादा दिन गुलफिशा को हो गए, 500 से ज्यादा दिन मीरान को हो गए, शिफाउर रहमान को हो गए, 500 से ज्यादा दिन कई सारे एक्टिविस्ट को हो गए जो जेल में बंद है। दिल्ली में नारे बहुत लगे हैं इन 1 सालों में, शर्जील की गिरफ्तारी और इन सारे एंटी सीए मूवमेंट के जितने भी हमारे लीडर्स रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली शांत नहीं रही। अभी 2 महीने पहले ही जंतर मंतर पे पूरा एक हुजूम आया, उसने नारे लगाए कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। दिल्ली में जुल्म नया नहीं है, नारे नए नहीं है, लेकिन जो नारे शाहीन बाग और एंटी सीए मूवमेंट पे, चाहे शर्जील हो, चाहे उमर हो, चाहे खालिद सैफी भाई हो, इन लोगों ने लगाए, उस नारे में क्या था? उस नारे में एक पैगाम था मोहब्बत का। उस नारे में पैगाम था एक फाइट का, एक लीगल बैटल का, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल का, जिसमें एक आदमी स्टेट को कह रहा है कि सुनो हमारी बात, आप हमारी बात आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं सुन रहे हैं, आप हमारी बात जुडिशरी में नहीं सुन रहे हैं, आप हमारी बात एग्जीक्यूटिव ऑफिस पे नहीं सुन रहे हैं, और जब हम सड़कों पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो आप डंडों से हमें रोकते हैं। क्या वजह थी कि 13 दिसंबर को एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च को पुलिस ने बुरी तरह ब्रूटली सप्रेस किया? क्या वजह है कि 15 दिसंबर को जामिया
और अलीगढ़ के कैंपस को उन्होंने एक आर्मी बैरिकेड बना दिया। क्या वजह थी? इनडिस्क्रिमिनेट टीयर गैसेस मारे गए, इनडिस्क्रिमिनेट स्टन ग्रेनेड मारे गए, लड़कों के कमरे में घुस के आग लगाया गया, लाइब्रेरी में घुस के मारा गया, हॉस्टल्स में घुस के मारा। क्या वजह थी? वजह थी स्टेट का डर। स्टेट को डर क्यों है? क्योंकि उनके जुल्म के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए हैं। उनके जुल्म के खिलाफ जो लोग खड़े, उन्होंने एक वेपन लिया है, वो है पीसफुल मीन्स का। एक वेपन लिया है, वो है लिया है डेमोक्रेटिक मीन्स का। और स्टेट को ये पसंद नहीं। क्यों 23 लोग यूपी में एक दिन में मारे जाते हैं? क्यों एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो स्टेट बीजेपी गवर्न है वहीं पे वायलेंस होता है, नॉन बीजेपी स्टेट में उससे बड़े मैसिव मिलियन मार्च होते हैं, वो कभी नहीं हुआ। So the problem is not with individual. The problem is not with a group of people who are protesting peacefully. The problem lies with the mindset of the state, जो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारे जुल्म के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो सकते हैं। ये वही लोग हैं, चाहे शर्जील हो, चाहे मीरान हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे खालिद सैफी हो, चाहे गुलफी शाह हो, चाहे कोई भी हो। ये लोग पीसफुल वे में they challenge the authority of the state, they challenge the vicious mindset of the state। और उन्होंने चैलेंज के साथ साथ क्या किया? उन्होंने चैलेंज के साथ स्टेट के जितने भी 7 डिकेड्स की जर्नी है उसको लोगों के सामने पेश किया। तो जब बेशर्मी पे उतरा हुआ स्टेट जब लोगों के सामने नंगा होता है, जब स्टेट की सारी बातें लोगों को समझ में आती है, जब लोग सवाल करते हैं कि हाँ नेल्ली मैसेकर में क्या हुआ, जब सवाल करते हैं गुजरात में क्या किया आपने, मुजफ्फरनगर में क्या किया, तब स्टेट को परेशानी होती है। उसी परेशानी से छटपटाया हुआ स्टेट, शर्जील हो, चाहे उमर हो, चाहे खालिद सैफी भाई हो, चाहे मीरान हो, इन पे दे आर ट्राइंग टू केज देयर वॉइसेस। बट वन थिंग इज वेरी श्योर, आप एक इंसान को कैद कर सकते हैं उस फिजिकल फॉर्म में, लेकिन आप आइडिया को कैद नहीं कर सकते। आप एक स्ट्रगल को कैद नहीं कर सकते, आप एक फाइट को कैद नहीं कर सकते, आप एक स्पिरिट को कैद नहीं कर सकते, आप हमारी सोच को कैद नहीं कर सकते, आप हमारी उम्मीद को कैद नहीं कर सकते। तो भले ही 604 दिन से शर्जील इमाम जेल के अंदर है, भले ही 535 दिनों से मीरान अंदर है, लेकिन आपकी स्पिरिट अंदर नहीं है, आपकी सोच अंदर नहीं, आपकी फाइट अंदर नहीं है। वो फाइट जो आप अंदर आपने किया था वो आज भी जारी है। और आज भले ही हम यहाँ फेसबुक पे जुड़े हैं, इन पूरे सालों में there has been hundreds of occasions that people have talked about it। तो जुल्म छुपाने से जुल्म छुपता नहीं है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो ये खून है, ये टपकेगा तो जमेगा, जमेगा तो लोग देखेंगे तो सवाल करेंगे स्टेट के एट्रोसिटीज पे, लोग सवाल करेंगे स्टेट के नियत पे, लोग सवाल करेंगे स्टेट की बदमाशी पे। एंड दैट हैज टू ब्रॉट इन ग्रेटर टॉक्स। तो एक बड़ा सवाल ये है कि शर्जील का 604 दिनों से अंदर होना, एक फिजिकल फॉर्म में अंदर है होना, जो स्पिरिट से वो लड़े थे, जो स्पिरिट से वो लड़ रहे थे, जिस स्पिरिट से पूरा एंटी सीए मूवमेंट हुआ था, दैट स्पिरिट इज स्टिल अलाइव। You cannot incarcerate the spirit, you cannot incarcerate the hope, and that hope, that spirit, that inner urge to fight, it's still there। Thank you। I will join। Thank you, Asif bhai. So now the next turn is Heba. Heba is a research scholar of JNU, and she has been very active during Najib movement, and she has been one of the very strong voice on the campus. So Heba is also following the case very closely, and her work is also related to all identity, oppressed identity. So Heba ji, now your turn। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुक्रिया अभय भाई हमें इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में। It is difficult to count the days as they go by of how many days have passed, but sometimes it's a necessary reminder कि इतने सारे दिन गुजर गए। And one of our fellow activists, one of our fellow friends, and somebody whom we saw, met, talked to, interacted with, whom all of us know from JNU, has been arrested. So I'll highlight a few portions of why this pre-trial imprisonment which Shajil is facing, how atrocious that is
Firstly, for the reason that so many days have passed. Even if you go by the letter of what UAPA says, it extends the pre-trial imprisonment to 180 days, which itself is atrocious. But in Sharjil's case, and in in the cases of so many other student activists whom Asif Bhai had just mentioned, it has extended to 500 days, more than 500 days, itne sare cases mein. So that itself shows that while the UAPA itself is an atrocious case which has led to the death of an activist, Stan Swamy, Father Stan Swamy, this year, it has also led to the further state hounding and witch hunting of certain activists in the name of crippling dissent, in the name of protecting the sovereignty and integrity of the territorial integrity of India. So this is the reason why the UAP is extremely harmful. It's extremely inhuman. It's an inhuman legislation, and in the name of what? In the name of defending the integrity of the nation state, a nation state which is so scared of students. Kuch din pehle, I think a couple of days ago, we saw a video of Gulfisha Fatma being led into court, and just see the figures of these individuals when they appear, when they make appearances. You know, when Gulfisha or Khalid Saifi or Umar or even Sharjeel, you know, when they make appearances, do they just by the appearance of their persona, does it feel as if they can instigate violence? I don't want to make unworldly comparisons over here, but you know, if you compare these individuals with individuals like Kapil Mishra, and the very persona, the very appearance, the way they are surrounded by people who are instigating, who are itching to do violence, there's a big difference between them. But while people like Mishra can go scot-free even after making speeches which actually lead to violence, they actually instigate violence, they actually encourage violence, they make violence the norm of the day, well, they can go scot-free. Individuals like Sharjeel Imam, Umar Khalid, Gulfisha Fatma, etc. are still in jail. And why? Just because they were leading protests in the anti-CAA, anti-NRC agitation. That is the only reason. And in Sharjeel's case, of course, the Indian state is even more scared of someone like Sharjeel Imam, because, as we know, he was intricately associated with the entire Chakka Jam agitation in Shaheen Bagh. And that is all that he was calling for. The reasons Sharjeel is in jail, there are a list of reasons. You know, firstly, that he is a Muslim. Secondly, that he is a research scholar. Thirdly, that he is in JNU. But one of the most important reasons is that he called for Chakka Jam. But Chakka Jam by itself is not sedition. And if we read the High Court judgment in the which granted bail to Asif, Divangana, and Natasha, it says that by itself, any call for protest, by itself, any participation in any protest does not amount to violence. It is not violence per se, and that the state is making this constant error. It's a deliberate error. It's a deliberate anti student measure to refuse to recognize the difference between a legitimate democratic protest and terrorist activity. The state is refusing to recognize the difference. And that is the reason why Sharjeel has been hounded. That is the reason why there have been so many FIRs against him. And that is the reason why 600 days have passed and he is still in jail. Just a few other things that I would like to say is that the reason why people like Sharjeel Imam are extremely important for the Muslim community is that because he is a brilliant researcher. He has one of those minds which can inspire people to think, to write, to question. And that is another reason why he is in jail. And that is another reason why he is not an ordinary prisoner. He is somebody who has been, he ऐसे उसे बनाया गया as if he is one of the most dangerous people to the Indian state today. And that is such an inhuman and atrocious thing to do. Just because he is somebody who writes, and we have all read Sharjeel's articles, which he was a prolific writer.
and he in jail he is still continuing to read, and that is what the Indian state resents deeply. We have so many examples to show that the Muslim community, that Muslims are grossly underrepresented in education institutions, especially in institutions of higher education, especially in subjects like history. But when you have a student like Sharjeel Imam writing, researching, reading history and using that knowledge to question extant policies of the existing government, to question things like the CA and the NRC, that is what the Indian state cannot stomach. And that is the reason why so many days have passed. It's appropriate to capture Sharjeel's life for 604 days and to keep him in jail. And let's look at the circumstances in which Sharjeel was arrested. He surrendered to the police. Whenever somebody is, this is something which I would love to bring everybody's attention to. And please notice this, that whenever Muslims are facing the legal, the legal system, the legal judicial system in which the whole process of trial and conviction and that occurs, and when after so many years pass, and when the judiciary by a fluke declares somebody innocent, every Muslim says, all these Muslims who have been released, who have been declared innocent, and yet who are struggling to regain the normalcy, they all say that we have a faith in the Indian judiciary, we have a faith in the Indian legal system, that we have a faith in the Indian court system, etc. The fact that Sharjeel cooperated with the police, the fact that he surrendered, it shows that he also had faith in the Indian judicial system, that same judicial system which is hell bent on keeping him in jail and of criminalizing him and of witch hunting him. Therefore, how can the Indian state declare him to be, all those things which Sharjeel is supposedly so dangerous, and the mastermind of the Delhi? He's even said to be one of the people who, the chief conspirators of the anti-Muslim the violence. The state calls it the violence, but we know the anti-Muslim violence that happened in Delhi last year in February 2020. So, as I was saying, the circumstances which show the fact that Sharjeel was ready to cooperate with the Indian judicial system is a further evidence to the fact that his criminalization and his imprisonment is unjust, and that if he is prepared to cooperate, why is the state still hell-bent on witch hunting him and of keeping him in jail? What is the point of this imprisonment? What is the point of this very long process of detention in jail? Unless it is, of course, to send everybody else a message. And that is, I think, what the state is doing when it is making the case against Sharjeel Imam and one other person, Umar Khalid, these two individuals, so difficult to get bail, so difficult to even ameliorate the circumstances of imprisonment. It is so difficult to do that. Why? Because the Indian state does not want, apparently, that is what it seems, that the Indian state does not want people like Sharjeel Imam and Umar Khalid to be released from jail. As if it's giving us a message that by the intimidation tactics that the Indian state is practicing against people like Sharjeel Imam, we should learn a lesson. And that is why the Indian state is wrong. We will not be silenced. That we will continue to voice our support for Sharjeel, and we will continue to voice our support for the movement as a result of which Sharjeel has, sacrificed so many days of his life. That is the anti-NRC and the anti-CA movement, which was continuing even days before the pandemic. I would like to speak very briefly about the anti-NRC, anti-CA movement, because that is where the whole saga of witch hunting Muslim students started. December 2019, when the CA was passed, that is when there was a spontaneous upsurge of protests. Am I audible? Yeah. Okay. Please continue. Yeah. So
going by the letter of what Indian democracy says, I mean, quoting that judgment in which the Delhi High Court granted bail to Asif, Natasha, and Devangana, popular protests are not anti-national in character. Popular protests are simply a measure of democracy, and if the state stifles these protests and curbs these protests in the name of protecting, the nationalist integrity, the nation, that is just democracy in danger. I am making a very simple point. Just count the numbers of cities, just count the number of people who participated in those protests. Not that a protest is always measured by the number of people who attend. There can be many popular protests which are supported by very few people. But the anti-NRC and the anti-CA movement was not that. There were so many people, and there were so many Muslims especially, all over India who participated in that movement. And we had so many spots, especially in this city, in Delhi, so many areas in which there were chakka jams, so many areas in which there were, peaceful, non-violent protests against against the CA legislation. And that is where Sharjeel played a very important role. And that is where, he exercised that, what we learn in university, that you study ideas of justice, you study ideas of equality, and you read them, and then you exercise them. Actually, you show them what does it mean to stand up for what is right. And Sharjeel did that, and unfortunately, he has had to pay a price for that. So 600 days of incarceration have passed, and we don't know what lies ahead. And of course, Sharjeel and Umar and Miran and Khalid Bhai and all these people are constantly present in our duas, because that is one thing we can do, to pray for those who are fighting against oppression, to those who have had to pay the price of fighting against oppression. And inshallah, one day they will find justice. Thank you. Yeah, should I start speaking? Abhay? Am I audible, or I can't hear anybody? I can't hear Abhay. You are audible, sir. You I mean, everyone is. I mean, ठीक है. तो हाँ, तो मैं बोलना शुरू करता हूँ. अभय, हाँ अभय, थैंक यू. आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और आसिफ और हिबा, आपके साथ बोलने का अभी जो ये मौका है, ये बहुत इसका इंतजार था, बहुत समय से इंतजार था. जैसे शर्जील 600 दिन से ज्यादा अब कैद में उसे रखा गया है. बाहर जो हम लोग हैं, एक तरह से हम सिर्फ इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं जो हिबा ने आखिर में बोला कि शर्जील इंशाल्लाह उससे भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंतजार हर दिन का हमारा भी है, हर एक इंसान का है जो चीजों से वाकिफ है और चीजों के बारे में जो सोचता है, और जो खुद एक तरह से इन चीजों से अपने आप को, अपनी जिंदगी को इन चीजों से नापता है कि उसकी जिंदगी का क्या इन चीजों के बाहर जिंदगी में कुछ है जो अब इस जिसमें वो जिसका वो महत्व है जो हम लोग आम जिंदगी में जीते हैं, वो ठीक है. और कोविड भी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अपनी जिंदगी को नापना इस घटना से है जो शर्जील के साथ हो रही है, या कईयों और के साथ हो रहा है जो जेल में है इतने दिनों से. तो हम लोग जो बाहर हैं, हम लोगों का भी एक तरह का हर दिन का इंतजार है, और हर दिन का जीना है. सिर्फ जेल के अंदर की बात नहीं, अंदर से हमें एक तरह से अपने आप को भी एक तरह से हम अंदर ही पा रहे हैं. जब शर्जील अंदर है तो हमारा भी एक हिस्सा अंदर ही है, जब उमर अंदर है तो एक हिस्सा हमारा भी अंदर है, और बाकियों के साथ भी जिनके दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, वो तो हैं ही, पर हम सब. तो ऐसे इन हालात में आज जो ये मीटिंग हो पा रही है, ऑनलाइन ही सही,
आप सबके साथ ये इसका इंतजार था, ये बोल पाना। तो मैं अभी जैसे आसिफ और हिबा ने बात की है, मैं भी बस 2-3 बातें ही रखूंगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो बातें ज़रूरी हैं और जुड़ी बातें। पहली बात तो ये है कि हाँ, 600 से ज़्यादा 604 दिन से शर्जील अंदर है, बंद है, कैद में है, लेकिन आप गौर करें कि जो नाम शर्जील इमाम है, वो बंद नहीं है। उसका असर बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम बार-बार ये चीज़ देखते हैं कि हमारी ये जो समाज की जो संस्थाएँ हैं, मीडिया उसमें एक बहुत बड़ी संस्था है, और भी जगह यूनिवर्सिटी उसका हिस्सा है। शर्जील इमाम के नाम से एक असर होता है। वो असर कभी-कभी जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में अधिकतर चैनल जो होते हैं, वो उस नाम से बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। They become so violent with the name, but they're obsessed with the name शर्जील। मतलब वो ऑब्सेसिवली उसको दोहराते हैं, शर्जील शर्जील शर्जील, और हर बार जितना बोलते उतना ज्यादा वो हिंसक होते हैं, सबके सामने होते हैं। वो भी एक तरह का मतलब मीडिया राइट ही है, मतलब एक तरह का क्या, मीडिया राइट है, और उससे कम क्या है। और शर्जील का नाम इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ यही नाम शर्जील इमाम हम सबके लिए और कईयों के लिए जो शायद आज हों, यहाँ पर हों या ना हों, वो एक और चीज उससे जाहिर होती है। वो है जो हिबा और आसिफ भी कह रहे हैं कि उस नाम में मैं 2 चीजों की तरफ इशारा करूंगा। एक जो सबसे मतलब यूनिवर्सल चीज है, वो है जुल्म के खिलाफ लड़ने की जो स्पिरिट है, जो हिम्मत है, जो जहनी एक तरह का वो खुलापन है कि दुनिया में जुल्म के खिलाफ कहीं भी हो लड़ने, आवाज उठाने की हिम्मत किसी में है तो शर्जील में है, और भी लोगों में है, लेकिन शर्जील में तो है ही है। तो ये इस नाम से ये एक चीज है जो जेल में, जो हिबा ने कहा आइडिया, वो जेल में बंद नहीं हो सकती। ये एक यूनिवर्सल चीज है जो शर्जील का नाम जाहिर करता है, वो बिल्कुल उस नाम से वो एक्सप्रेस होता है। लेकिन एक दूसरी चीज है जो बहुत स्पेसिफिक है, वो है मुस्लिम, मुसलमान। शर्जील के नाम के साथ मुस्लिम होना जुड़ा है एक बहुत ही अजीब तरीके से आज, जो शायद दूसरों से भी जुड़ा है, कईयों से जुड़ा है, लेकिन शर्जील से तो जुड़ा है। उसमें भी 2 बातें मुझे लगता है हम उससे हम गौर कर सकते हैं। और एक ये है कि जब शाहीन बाग में शर्जील ने इतना बड़ा, शर्जील, आसिफ और भी लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी पहल की, और इतना बड़ा इतनी बड़ी एक राजनीतिक और सामाजिक समय में एक दरार, मतलब एक नयापन आया। उस एंटी सीए प्रोटेस्ट का सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं था, उसका जो फॉर्म था उसमें एक रचनात्मक शाहीन बाग एक रचनात्मक एक दहलीज है जिससे बिल्कुल प्रोटेस्ट की इमेजिनेशन बदल गई। और उसमें शर्जील ने अपना जो रोल प्ले किया, उसमें शर्जील, अब शाहीन बाग एक इतनी समृद्ध चीज है, इतना उसमें इतना कुछ है कि उसको कई तरीकों से देखा जा सकता है, कई उस पर पर्सपेक्टिव हम उसका डिस्कशन कर सकते हैं, और उसमें समय लगेगा। लेकिन शर्जील का भी उसमें एक पर्सपेक्टिव था, जो उसकी स्पीचेस में वो बात सामने आई, और वो पर्सपेक्टिव ये था, वो समझ ये थी कि हमें ये दोनों चीजों को साथ बोलने की हिम्मत और वो जमीन तक तैयार करनी है। एक जो मैंने बोला कि एकदम यूनिवर्सल, कि कहीं भी जुल्म हो तो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत एक इंसान में और सामूहिक तौर पे हम सब में होनी है। लेकिन दूसरा, एक खास मौके पर, एक खास परिस्थितियों में एक खास नाम का इस्तेमाल करने से भी हमें घबराना नहीं, अगर वो नाम एक सच्चाई, एक असलियत की तरफ इशारा करती। और हमारे समाज में, इंडिया में, कम से कम ये सीए के दौर में, लेकिन इसका एक छोटा सा विश्लेषण हम अभी 1 मिनट में मैं करता हूं, लेकिन इस दौर में जब से ये अमेंडमेंट आया है, तब से मुस्लिम या मुस्लिम होना सिर्फ कम्युनिटी और आइडेंटिटी की बात नहीं है। मेरी समझ से मुस्लिम होना एक नई परिस्थिति है। Muslim is a situation. So the same community is placed in a new situation.
Within the community, there are differences, like any community. There are differences of understanding. There is differences of understanding that very identity, whether it's a religious identity, social identity, and there are rich debates about that. But the situation is something today which all Muslims share, which is a historical situation. It's a material situation. So you could speak in terms of Muslims having different understandings of everything, including Islam itself. That's fine, just like any so-called community. But we also see that this situation addresses every Muslim as a Muslim in a completely homogeneous way. And this is what majoritarian Hindu society and its political power, this violent political power that it uses, it is effectively imposing this homogeneous situational identity of everyone being a Muslim. And insofar as you're a Muslim, you're already guilty. So this is what could be called the creation of a society of denunciation. कि हम लोग ऑफ कोर्स हम कानून का और जो इंसाफ की हमारे लीगल संस्थाएं हैं उसका जिक्र करेंगे, वो सब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस सब से कुछ एक और लेयर है, एक और पीछे छुपा हुआ, लेकिन छुपा नहीं है, जाहिर भी है, एक पूरा मकसद है। वो ये है कि समाज, और ये बात मैं कुछ दिन पहले एक और मीटिंग थी जहां नताशा नरवाल भी बोल रही थी, वहां भी मैंने ये बात बोली है कि ये पूरी चीज समाज के लेवल पर है। जेल में लोगों को कानून के दायरे में रखा जाता है और कानून के दायरे में सिर्फ इंसाफ नहीं, नाइंसाफी भी होती है, हमें मालूम है ये। लेकिन ये बात सिर्फ कानून की नहीं है, ये बात समाज की है। तो मुझे लगता है मेन स्ट्रैटेजी, रणनीति ये है इस सरकार की, और इस सरकार के उस समाज का जो पूरा कंट्रोल वो चाहती है, वो ये है कि अगर कल को शर्जील, उमर, ये लोग सभी छूट जाएं, और छूट जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी तरह मतलब कॉन्फिडेंट कि मतलब इधर से उधर से समय के साथ बहुत सारे जुल्म सहने के बाद जेल से निकलेंगे और बिल्कुल बाइज्जत निकलेंगे, बरी होंगे। लेकिन मुझे लगता है वो सबको पता है, ये गवर्नमेंट भी जानती है, ये पुलिस जानती है, सब जानते हैं, उसके बावजूद ये हो रहा है। यूएपी का इस्तेमाल, सेडिशन का इस्तेमाल, मुझे लगता है उस रणनीति ये है कि जो जेल से छूटे न छूटे, लेकिन समाज का जेल इन्हें बंद रखे। और इसकी मिसाल हम पहले देख चुके हैं, और वो बीजेपी की सरकार के दौरान नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उसका इस्तेमाल किया है, जाहिर है, लेकिन वो समाज के लेवल पे था। जैसे मैं नाम लेता हूं, सबको पता है SAR गिलानी के साथ जो हुआ, वो बरी हो गए, लेकिन कभी वो आजाद ना हो पाए इस पूरे एक्यूजेशन से कि दोनों चीजें उसमें थी, खैर, मुस्लिम होना और कश्मीर से जुड़ना। और जब उनकी मौत हुई तो बिल्कुल अंधेरे में जैसे वो गायब हो गए, लेकिन कानून ने उनको बरी किया था बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन समाज के जेल में वो बंद रहे आखिर तक, और वहीं वो खत्म ही हो गए। तो मुझे लगता है कोशिश ये है, मैं नहीं कह रहा हूं ये कोशिश कामयाब होगी, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये कामयाब नहीं होगी, लेकिन कोशिश ये है, मुझे ऐसा लगता है कि समाज का प्रिजन पहले से तैयार है, और उस समाज के प्रिजन में एक लीगल प्रिजन है, उसका इस्तेमाल किया जाए, और कानून का इस्तेमाल किया जाए, और कानून का इस्तेमाल खुलेआम किया जाए, जो सबको पता है कि गलत इस्तेमाल है यूपीए का, इसका, और ये कानून अपने आप में गलत है, ये दूसरी बात है। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इसको करने के पीछे, और मतलब ये कहने सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कहना जरूरी है। जैसे शर्जील बोलने से नहीं डरते थे, उसी तरह उनकी मिसाल दिमाग में रखते हुए हमें बोलने से नहीं डरना है, और वो ये है कि ये सरकार और ये जो सामाजिक तबका है जो इस सरकार को बनाए हुए है, और जो लीडर्स हैं सब लोग, वो एक अजीब राइट चाहते हैं, एक अजीब हक चाहते हैं। वो इंसाफ का हक नहीं है, वो है राइट टू कमिट इनजस्टिस, राइट टू डू नाइंसाफी, नाइंसाफी का हक चाहते हैं, और समाज वो हक देने, वो कई समाज का एक तबका वो देने को तैयार है और दे रहा है, और मीडिया उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका हिस्सा है कि एक राइट टू इनजस्टिस की लेजिटिमेसी, और वो जेल के अंदर और जेल के बाहर भी दोनों जगह हासिल है, मतलब हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक पूरा फ्रेमवर्क है जो इसको किसी लीगल या किसी सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्टिव फ्रेमवर्क है जो मुझे लगता है इस जिसको मैंने कहा परिस्थिति, सिचुएशन, द मुस्लिम सिचुएशन, इस इस चीज को दर्शाता है कि मुस्लिम एक ऐसी सिचुएशन है जो इनजस्टिस का सामना कर रही है, लेकिन वो इनजस्टिस करने का हक किसी को है। ये एक अजीब चीज है जो सुनने में बिल्कुल, मतलब बिल्कुल किसी भी समझदारी के खिलाफ जाती है, मतलब रिडिकुलस है ये कहना, इरेशनल है। लेकिन मुझे लगता है ये इरेशनल चीज आज हमारे समाज में और हमारे देश में काफी कुछ काम कर रही है। पूरा नहीं, इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन काफी कुछ काम भी कर रही है। तो इसलिए एक तरह का रैशनल प्रोटेस्ट, रैशनल कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है, और उसमें मुस्लिम की समझ बनाने की जरूरत, इसलिए विश्लेषण छोटा सा मैं करूंगा, वो ये है कि ये मुस्लिम जो एक नई सिचुएशन पैदा हुई है, पैदा नहीं हुई, पैदा की गई है, जिससे क्या होता है, जिससे आप नापते हैं कि कौन है जो आतंकवादी का पूरा वो जो परसोना है, जो अभी हिबा ने कहा परसोना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शर्जील को देखें, उमर को देखें, इनको तो हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, और भी लोगों को, गुलफिशा और भी लोग, नताशा, किसी को, देवांगना और भी लोग, इनको देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे कैसे आप सोच सकते हो कि ये लोग आतंकवादी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि मुस्लिम होने में ही आतंकवादी होने का कुछ एक संभावना आज के दौर में है, लेकिन वो कहा नहीं जाएगा, लेकिन एक तरह से उसको समाज में वो जो जहर है उसको फैलाया जाए। और जाहिर है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं है, उसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे ये लेफ्ट का जो पूरा है, कभी वो माओइस्ट कहा जाता है, कभी नक्सल कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम आज की स्थिति में सबसे ज्यादा उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो एक खतरे का नाम बना दिया गया है, या एक खतरनाक नाम, जैसे भी कहे, टेरराइजिंग नाम मुस्लिम। लेकिन उसका असर क्या होता है कि बिल्कुल उल्टा होता है, कि क्योंकि आपने नाम के साथ ऐसी चीज जोड़ दी है, तो इन परिस्थितियों में, इन सिचुएशन में मुस्लिम पर आप सबसे ज्यादा जुल्म कर सकते हैं। इन दैट सेंस लेजिटिमेसी टू टेरराइज कब होता है? जब आप कहते हैं जिसको टेरराइज करते हैं वो खुद ही टेरराइजिंग है। ये एक होता है ना, ऑप्रेसर कहता है मैं सबसे बड़ा विक्टिम हूं। तो अगर कोई जा रहा है और आप कहें कि देखो देखो मांस ले जा रहा है, और उसका आप लिंच कर दिए, तो आप कहेंगे कि ना ना ना, वो अकेला है, लेकिन वो सारे देश के लिए खतरा है, चाहे वो अखलाक हो, कोई हो, मामूली कोई भी इंसान, लेकिन वो नाम जरूरी है मुस्लिम। वो एक आज की परिस्थिति में सिर्फ कम्युनिटी के लेवल पर नहीं है, ये एक ऑपरेशन की नई स्ट्रैटेजी है। लेकिन मुस्लिम में और भी चीजें छुपी हुई हैं। मुस्लिम के साथ आप नक्सल जोड़ सकते हो, मुस्लिम के साथ आप पिंजरा तोड़ जोड़ सकते हो, पिंजरा तोड़ में एक औरत, एक महिलाओं का ऑटोनॉमी है, वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है। लेकिन हाँ, मुस्लिम आज सबसे आगे है, और ये हिस्ट्री में कई बार हुआ है। ज्यू के साथ ये हुआ है, ब्लैक्स के साथ ये हुआ है सिविल राइट्स मूवमेंट में। इंटरेस्टिंग ये है कि सिविल राइट्स मूवमेंट में अमेरिका में ब्लैक और मुस्लिम दोनों एक तरह से एक नए एक नई सोच उन्होंने पैदा की थी। जैसे मैल्कम एक्स, वो भी ऐसे थे जो इसको बोलने से नहीं पीछे हटते थे कि ब्लैक और मुस्लिम दोनों को बोलना है। लेकिन क्यों? क्योंकि जिस तरह से वोले शोइंका ने नेग्रो बोला था, कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा नेगेटिविटी पैदा कर रहे हो, नेग्रो, ब्लैक मुस्लिम, मुस्लिम आज इंडिया में, उसी चीज को हम असर्ट करेंगे, नॉट merely as a religious identity, not as a community identity merely, but as a historical name, a historical name of opposition, a historical name of resistance. इसीलिए कोई नाम सिर्फ नाम नहीं होता, सिर्फ आइडेंटिटी नहीं दर्शाता है, उसमें जिसे कहते हैं एक विरोध होता है, डायलेक्टिक होती है, और उसको आप किस दिशा में ले जाते हो, इस पर उस नाम। Hello, sir.
एम हेलो आसिफ भाई, जी जी आवाज आ रही है? जो जी कह जी, रही आपकी आवाज आ रही है। हिबा जो मैं खत्म करूंगा बस 2 मिनट में। हिबा जो कह रही थी मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। शाहीन बाग में उस तरह की चीज, उस तरह के नाम का इस्तेमाल करना, वो मुस्लिम मुस्लिम है और माइनॉरिटेरियन नाम के मैस पॉलिटिक्स, मैसेस जुड़ी थी हमारे, और उसमें और भी चीजें थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज थे, सेक्युलरिज्म का भी था, और सिटीजनशिप को ही एक तरह से सबसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजनशिप का जो सबसे बड़ा जो व्यापक मतलब है उसको फिर से वापस सामने लाना था। इसलिए प्रियम्बल को कितनी ही बार पढ़ा गया। तो इन बातों को याद रखना, लेकिन उसमें मुस्लिम भी नाम था। और ये पुलिस, दिल्ली पुलिस जब भी बेल के खिलाफ वो अपनी अर्जी देती है, क्या कहती है, बार बार कहती है समाज को गलत मैसेज मत दीजिए, कि बेल दे देंगे तो समाज को गलत मैसेज मिलेगा। तरजील का जहां तक है, साफ है कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी में हिम्मत हो कि मुस्लिम के नाम को इस्तेमाल करे लेकिन एक यूनिवर्सल रेजिस्टेंस का भी वो प्रतीक बने, तो ये मैसेज समाज तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उसको अंदर रखा जाए और इसलिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो यूपी हो, सेडिशन हो, वगैरह वगैरह। हेलो। किसी के साथ नहीं हुआ। एट द सेम टाइम जू कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें, जैसे कई एक इजरायली जायनिस्ट थिंकिंग है कि जूस मतलब विक्टिम ही है ना, उसी तरह से मुस्लिम भी अपने आप में न विक्टिम है न विक्टर है, वो सिचुएशनल है। और वो सिचुएशन हमारे देश में पैदा हुई है बाबरी मस्जिद से। इसलिए बाबरी मस्जिद एक इतिहास का वो की दरार है, जहां से इस मुस्लिम नाम के साथ पिछले 30-40 सालों में एक सीक्वेंस पैदा हुआ है, जहां ये एक पूरा एक समझ, एक लॉजिक, एक अनजस्ट लॉजिक हमारे सामने आया है, जिसमें आज ये इस्तेमाल किया जा सकता है मुस्लिम नाम को सोशल टेररिज्म, एक तरह से मेजॉरिटेरियन टेररिज्म का करने का एक पूरा जस्टिफिकेशन बना है। लेकिन आपको दूसरी तरफ अगर उसी के साथ जो दूसरा जो नाम जुड़ा हुआ है अयोध्या, वो इस तरह से समझा जाता है कि अयोध्या और राम वगैरह ये इतिहास का हिस्सा नहीं, ये एक हिंदू सनातन किसी अस्तित्व जो किसी भी इतिहास से परे है। लेकिन यही मुझे लगता है, मैंने कहीं पे ये बात बोली भी है और मेरी किताब में, खैर वो बात दूसरी है, मैंने बात कही है कि क्यों शाहीन बाग अयोध्या नहीं है। जाहिर है कि नहीं, लेकिन उसकी एक वजह है। शाहीन बाग अयोध्या इसलिए नहीं है क्योंकि शाहीन बाग इतिहास का हिस्सा है और किसी सनातन सच्चाई पर कब्जा नहीं करना चाहती। वो इतिहास में रहकर एक यूनिवर्सल बात करना चाहती है, जो इक्वालिटी है, जो इंसाफ है, जो सच्चाई है, ट्रूथ है। लेकिन ट्रूथ भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। शाहीन बाग उस हिस्ट्री का हिस्सा है। बाबरी मस्जिद का टूटना हिस्ट्री का हिस्सा है। अयोध्या हिस्ट्री को झुठलाता है और हिस्ट्री के बियॉन्ड सनातन काल्पनिक जगह हमें पहुंचाने की कोशिश करता है। उसको अगर दिमाग में रखे तो हाँ, शाहीन बाग अयोध्या नहीं है। मुझे लगता है, मेरी सोच से, और इस पर और बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरी सोच से इस फ्रेमवर्क में, इस तरह से अगर हम सोचें तो मुस्लिम वॉइसेस का आज उठना, बोलना, सामने आना सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं है, और कम्युनिटी की बात तो है ही, लेकिन कम्युनिटी और इंडिविजुअल की बात नहीं है। आज के दौर की जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसके अंदर रहकर एक नई संभावना पैदा करने में ये आवाजें एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रोल प्ले, वो एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और वो जेल के अंदर रह के भी और जेल के बाहर आने पर भी वो आवाजें दबेंगी नहीं। लेकिन फिर वो बात हम दिमाग में रखें कि ये जो चीज हम कह रहे हैं, ये हमसे ज्यादा जानती है सरकार और वो समाज जो इन चीजों को कर रही है, और इसीलिए वो चाहती कि पहले से समाज को एक तरह से जेल बना दे। शेक्सपियर के हैमलेट में एक लाइन था ना कि डेनमार्क इज अ प्रिजन
डेनमार्क में कई प्रिजन्स होंगे, लेकिन पूरा डेनमार्क ही अगर प्रिजन हो तो प्रिजन से बाहर निकल के वह प्रिजन से बाहर नहीं है। तो हमें इस बात के लिए काम करना है, चाहे अंदर हो, बाहर रह के और ज्यादा करना है कि इस तरह की स्थिति ना हो जब शर्जील बाहर आए, और वो जरूर आएंगे और बाकी लोग भी आएंगे, वो एक जेल से दूसरी जेल में कहीं न कदम रखें। और ये न हो, इसके लिए बाहर रहते हुए हमें ये लड़ाई लड़ते रहनी है कि बाहर की हवा भी जेल की हवा न बने। इतना कहना था। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो हम लोग ले सकते हैं। सर अभी तक तो कोई सवाल नहीं है, तो आई थिंक नाउ वी शुड वाइंड अप। एंड एज Sharjeel has said time and again that he is in jail, but nothing has stopped us from continuing the struggle which he has left when he was arrested. So आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। आसिफ भाई, हेबा, एंड हम फिर मिलेंगे और फिर बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।